अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी यूनिट नंबर 11 दैट इज़ साउंड। ठीक है, हम उसके करेंगे आज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो चलते हैं जी नोट्स की तरफ। ये हम आ गए हैं नोट्स पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स एंड गैसेस। So sound travels faster in solids because solids are more elastic as compared to liquid and gases. अब एक सादी सी बात, बिल्कुल अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इस सारे से नहीं बल्कि वैसे ही दूँ तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। इस जैसे साउंड जब इसके एक पार्टिकल को टच करती है तो वो बिल्कुल दूसरा पार्टिकल उसके साथ जुड़ा हुआ, तीसरा दूसरे के साथ जुड़ा है, तो वो इस तरह बिल्कुल साथ साथ पार्टिकल्स हैं, तो वाइब्रेशन आगे ट्रैवल करती जाती है और साउंड जल्दी ट्रैवल कर लेती है लिक्विड्स और गैसेस की निस्बत। ठीक है, सो इसकी एक्सप्लेनेशन है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ मीडियम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला that v is equals to under root e over rho. So here e represents the elasticity and rho represents the density of the medium. ये p नहीं है, इसे rho पढ़ते हैं. The ratio of elasticity and density decides the nature of speed. For solids, elasticity to density ratio is much greater than those for liquids and gases. That is why in solids sound travels faster than liquids and gases. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर वी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग द सेम लाउडनेस. So we are able to distinguish between two sounds of the same loudness because of their pitch or quality. इसकी explanation है, the characteristic of a wave due to which we can distinguish between a shrill and a grave sound is called pitch. ठीक है, shrill का मतलब पतली आवाज़, नोकीली, और grave का मतलब मोटी भारी आवाज़. If a girl and a boy are talking to each other with the same loudness, their voices can easily be distinguished or differentiated because of different pitch. Now consider two boys are talking to each other with the same loudness. In this case, the pitch of the boys are same, but we can still differentiate between their voices. It is possible due to the characteristic of wave called quality or timbre. ठीक है, फिर अगला है, the vibrating mobile phone on wooden table sounds larger than held in hand. Why? So vibrating phones on wooden table sounds louder than held in hand because the surface area of a wooden table is greater than surface area of the phone. ठीक है, so loudness of sound is directly proportional to the surface area of the vibrating body. When the mobile phone is in contact with the table, the vibration of the mobile phone is transmitted to the surface of the mobile phone which is in contact with the table. The vibration of mobile phone is transmitted to the surface of a table whose surface is very large as compared to the surface area of the phone and hence sounds become louder. ठीक है, अब देखें जो हमारे पास वुडन टेबल है वो भी तो एक सॉलिड ही सरफेस है ना, तो वो उसके ऊपर उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा फील होगी ना कि हाथ में. ठीक है, अच्छा अगला है हमारे पास, ड्यूरिंग अ मैच इन क्रिकेट स्टेडियम यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल but we hear the stroke sound slightly later. Explain this time difference. So this is because sound light travels faster than sound. ठीक है, जो light है, अब देखें, we hear the sound of the stroke after a slight delay, then we see the shot because the speed of sound is very much less than the speed of light. यानी कि लाइट पहले ट्रैवल कर जाती है, जल्दी ट्रैवल करती है साउंड से. हम स्ट्राइक पहले अपनी आंखों से देख लेते हैं लेकिन आवाज़ हमें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड थोड़ी देर बाद आती है. वी सी द ऑब्जेक्ट्स when light is reflected from its surface and thus we see a batsman striking the ball through the reflected light. As the speed of light is very much greater than the speed of sound, therefore light reaches before the sound reaches us. That is why we hear the stroke slightly later. ठीक है, and we see the stroke faster. So now we are here with the question number 5, that is, how much intensity level increases when intensity of louder sound is doubled and the intensity of faintest audible sound. ठीक है, अब क्वेश्चन है इसका जवाब क्या बनता है, बिल्कुल सिंपल, अगर 2 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन के बगैर. द इंटेंसिटी लेवल विल इंक्रीज टू 3 डेसिबल्स
when intensity of louder sound is double the intensity of faintest audible sound. Explanation है from Weber-Fencher's law the difference in intensity level is given by बीटा, ठीक है, ये डेल्टा बीटा इज इक्वल्स टू 10 log I over I नॉट डेसिबल्स. हेयर आई नॉट इज द, ये आई नॉट पढ़ते हैं जो नीचे जीरो सा लिखा होता है. हेयर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड एंड आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाउडर साउंड, ये जो ऊपर वाला आई है. एज इट इज गिवन दैट आई इज इक्वल्स टू 2i, ठीक है. हमें बताया है कि जो इंटेंसिटी है हमसे अगर डबल कर देते हैं देयर फॉर द अबव इक्वेशन, अब ये वाली इक्वेशन है वो 2i जब उसमें हम डालेंगे आई की जगह तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास बी, ये डेल्टा बीटा इक्वल्स टू लॉग 10 log 2i over i नॉट. अच्छा अब हम लोग करेंगे क्या, बहुत सिंपल है. जो इन्होंने भी किया हुआ है कि आप इन्होंने जो यहाँ ये स्टेप किया हुआ है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला, इन्होंने क्या किया है कि ये वाला जो आई है और जो ये वाला आई है इसे आप लोगों ने कट कर दी है, राइट. हम लोग आप देख लें कि ये वाला जो आई है और ये वाला जो आई है इसको यहाँ कट कर दिए, पीछे क्या रह गया इज़ 10 log 2, ठीक है. अब बिल्कुल जिस तरह मैथमेटिकली जो रूल है उस तरह सॉल्व करेंगे वो. अब आप लोग यहाँ नीचे ना देखें, यहाँ से आप लोग यहाँ आ जाएं. अब यहाँ क्या है 10 log 2, अब log 2 की वैल्यू क्या होती है 03010, जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वही 3 डेसिबल्स, ठीक हो गया. फिर कैन इरेज इट नाउ. सो अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें 6 वाला एंड देन वी गना फिनिश दिस वीडियो. सो इस नेक्स्ट पार्ट 2 में आप लोगों को बाकी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे 11 तक. फिर 2 सिंगर्स आर सिंगिंग टुगेदर साइमल्टेनियसली विद इंटेंसिटी लेवल ऑफ 60 decibels of each in a hall. So number 1 is question is that is intensity of sound in the hall doubled or is the intensity level of sound doubled, ठीक है. अच्छा, अब है yes the intensity of the sound in the hall will be doubled but the intensity level of the sound will be increased by 3 decibels only. So when two singers are singing simultaneously with intensity level of 60 decibels each, their corresponding intensities will be 1 is equals to 10 to the raised power minus 4 watt per meter square each. Now the two intensities will be added up to double the intensity, that is 2 into 10 to the raised power minus 6 watt per meter square. So the intensity level difference is given by this formula. So here I is the combined intensity of the two sounds while I naught is the reference intensity and is taken as the intensity of the single sound. Therefore अब नीचे इन्होंने ये वाला कर लिया, ऊपर 2 into 10 to the raised power 6 minus 6 वैल्यू डाली, नीचे 1 into 10 to the raised power minus 6 वैल्यू डाली. ये ऊपर से दोनों के दोनों, क्योंकि ये भी -6 था ये भी -6 था, देखें ये भी -6 था ये भी कट हो गया, ये भी -6 था ये भी कट हो गया. आपके पास पीछे अब क्या रह गया 10 log 2 over 1 हमारे पास पीछे बच जाता है. मैं आप लोगों को ऊपर लिख के दिखा लेती हूँ. 10 बच गया, log बच गया, 2 over 1 बच गया आप लोगों के पास. तो जब भी हम 2 को 1 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा दैट इज़ 2, राइट. तो जवाब हमारे पास 2 ही आएगा. तो फिर से वही बन गया 10 log 2. तो log 2 की वैल्यू आप लोग निकालोगे वो 0.3010 आती है, ठीक है. और फिर जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 3 डेसिबल्स आपका जवाब आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स हमने अब कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक. हम लोगों ने यहाँ तक सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. सो अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेके ऑनवर्ड्स जितने हैं हम वो सारे के सारे लेक्चर क्वेश्चन आंसर्स जो हैं कंसेप्चुअल उन्हें कवर कर लेंगे.